वाह, क्या जुनून है। आपने अगस्त के दीवानेपन की झलक तो देख ही ली कि वो कैसे पाखी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन हमारा वादा था आपसे पाखी को मिलाने का, एंड वी फाइनली हैव हर हियर विद अस। So let's get started with this beautiful afternoon. Good afternoon, namaste, sat sri akal, and copy to all. I hope that you all are doing well and everyone around you is safe and sound. On behalf of Colors, I wish you and your loved ones the very best of health. अरे पर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन तो दी ही नहीं। पर आप लोग तो जानते ही होंगे, मैं हूँ पवलीन गुजराल, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की होस्ट। तो इरशाद किया है वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शिद्दत ना हो, उसे हासिल करने की जिद ना हो, सर पे सवार खून ना हो, दिल पे छाया जुनून ना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक ऐसी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके हैं अगस्त्य। लेकिन अगस्त्य जिस लड़की को अपना मानते हैं वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। सिर्फ एक प्यारा सा दोस्त। पाखी को जिसकी याद सारी रात जगाती है उसका नाम तो ईशान है। पाखी और ईशान जो अपनी लाइफ साथ बिताने के प्यारे से सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या अगस्त्य का जुनून इनके ख्वाबों का सुकून छीन लेगा? तीन दिलों के बीच उमड़ते इस तूफान में किसको होना पड़ेगा फना? वेल दोस्तों, मन में उठते ऐसे ही सवालों का जवाब देने आ रहे हैं कलर्स के एक नए शो फना इश्क में मर जावा, 31 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे। इस रोमांटिक थ्रिलर में टेलीविजन के कुछ जाने माने चेहरे हैं। But before I tell you more about the show, may I please call upon the creative minds behind this show. Ladies and gentlemen, please welcome Deepti Kalwani and Karishma Jain, the producers of Fana Ishq Mein Mar Jawa. Hello, welcome to the press conference of our new show Fana Ishq Mein Bhar Jawa. I hope you and your family members are safe during these difficult pandemic times. Unfortunately, we couldn't meet you in person due to government restrictions, but I'm really glad that you guys are here virtually supporting us. This show focuses on the most powerful emotion, love. प्यार, ये तो सब जानते हैं कि प्यार में थोड़ा पागलपन चलता है, लेकिन क्या होता है जब एक आशिक आशिकी की हद से आगे निकल जाता है। इसी आशिकी को बयान करने आ रहे हैं अगस्त्य, पाखी और ईशान। अगस्त्य is a rich, good-looking businessman from London. Paki is a sweet, optimistic girl, and Ishan is a dependable, reliable doctor. पाखी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अगस्त्य उसे पागलों की तरह प्यार करता है और वो गलती कर बैठती है ईशान से प्यार करने की। तो क्या करेगा अगस्त्य? He is going to turn their lives upside down. उसकी आशिकी को देख के आप ये पूछेंगे क्या प्यार इस हद तक जा सकता है? We are immensely excited to be working with the most fabulous set of actors, Zain Imam, Reem Sheikh, and Akshit Sukhija. We are really grateful to our cast and crew for putting in their immense effort during these tough times and bringing out this show to you guys. Please don't forget to watch this show, Fana Ishq Mein Bhar Jawa, Monday to Friday, 10:30 p.m. on Colors from 31st January 2022. And to keep the excitement up, we're going to show you a glimpse of our show. Whoa, क्या बेहतरीन टीजर है। This is going to be indeed a thrilling tale of love, I must say. I am already eagerly waiting to watch this show, and I'm sure you are equally eager to see what happens in the life of Pakhi, Agastya, and Ishan. Right from the friendship to love to nail-biting suspense. इस show में hit होने वाले सारे formula हैं. Thank you so much, Deepti ji and Karishma ji. I would now like to introduce the very talented cast of Fana Ishq Mein Mar Jawa on stage. Television jagat ke heartthrob, the very charming Zain Imam, who essays the character of Agastya. The very beautiful and talented Reem Sameer Sheikh, who portrays the character of Pakhi. And the dashing boy next door, Akshit Sukhija, who plays the role of Ishan. वेलकम गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आइए सुनते हैं इन किरदारों की कहानी इन्हीं की जुबानी। आई नो आप सबने आज की हेडलाइंस पढ़ी है। अगस्त्य रायचंद का नेटवर्थ $13.1 मिलियन।
मेरा नाम सुनकर आपको शायद सिर्फ ये याद आता है कि मेरा लंदन वाला मैंशन क्वीन के पैलेस के बगल में है, या फिर ये कि मैं पिछले महीने यंग अचीवर्स मैगजीन के कवर पर था। लेकिन मेरे बारे में जो बात दुनिया नहीं जानती वो ये है कि मेरी असली दौलत एक लड़की है। एक लड़की जो मेरे जीने की वजह है और मेरे जीने का मकसद भी। मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। बाकी वो इतनी प्रेशियस है कि 15 सालों से मैं दिन रात उसे दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। इन 15 सालों के हर दिन में, हर पल मैं उस पर नजर रखी। ऑफ कोर्स ये बात नहीं जानती वो। उसे लगता है उसकी लाइफ में जो भी विश पूरी हुई है वो एक यूनिवर्स ने करी है, बट वो कहाँ जानती है कि उसकी हर फरमाइश पूरी करने वाला यूनिवर्स मैं हूं। वो तो इतनी भोली है कि आज तक ये नहीं समझ पाई कि जिसे वो फ्रेंडशिप का नाम दे रही है ना, वो एक्चुअली फ्रेंडशिप नहीं, वो प्यार है। इस बात से अनजान है कि she lost me। अब बस उसे इस प्यार का एहसास दिलाना है, और अगर किसी ने मेरी पाखी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं जिंदगी के उजाले छीन लूंगा उससे। I'm gonna make his life hell। हेलो हाय बाती, पहले शुरुआत थैंक यू से करते हैं क्योंकि आपकी जो इम्पॉसिबल ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग थी ना, वो मैंने पॉसिबल कर दी है। जी हाँ, आपका रिसेप्शन ताजमहल में ही होगा, फाइनल है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको बाद में भेजती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। बाय। हाँ, पूरे एनसीआर में मुझसे बेटर वेडिंग प्लानर ढूंढ के दिखा दो, अरे मिलेगी ही नहीं। वैसे आप सोच रहे होंगे ना कि ताजमहल जैसी इम्पॉसिबल लोकेशन मैंने इतनी आसानी से पॉसिबल कैसे कर दी। वो क्या है ना, मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ। अरे हाँ सच्ची, मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ। जो भी कभी भी विश मांगू ना, हमेशा पूरी हो जाती है। जैसे मैंने कई साल पहले यूनिवर्स से मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड मांगा था, तो यूनिवर्स ने मुझे डोडो दे दिया। डोडो मतलब अगस्त्य रायचंद। हाँ, वही अगस्त्य रायचंद जो महल जैसे घर में रहता है, प्राइवेट जेट्स में घूमता है। लाखों लड़कियां मरती है अगस्त्य पे, लेकिन फिर मेरे डोडो को मुझसे बेटर और कोई नहीं जानता। आफ्टर ऑल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वैसे हाँ, मेरी खुशी और एक्साइटमेंट का ना एक और रीजन, एक्चुअली 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि मुझे ना प्यार हो गया है। हाँ, एकदम 90s की फिल्मों वाला प्यार। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, अजीब अजीब ख्याल आते, गाने बजते हैं, बिल्कुल वैसे वाला। और दूसरा रीजन ये है कि आज ना मैं जिससे प्यार करती हूँ, यानी कि ईशान को और अगस्त्य को मिलाने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड बट ऑल्सो वेरी नर्वस, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। बट आई एम श्योर कि डोडो ना ईशान को पसंद कर लेगा, क्योंकि ईशान है बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज वेल। एक्चुअली वेल ही जाएगा, यूनिवर्स इज विद मी। अच्छा ठीक है, अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ, बाय बाय। मेरी लाइफ का प्लान हमेशा से सॉर्टेड था। 23 पे MBBS, 26 पे MD एंड देन 28 पे फेलोशिप। उसके बाद मेरी तरह किसी डॉक्टर लड़की के साथ शादी एंड देन अपना प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन एक इवेंट प्लानर ने मेरी सारी प्लानिंग को रॉकेट बना के फुर्र उड़ा दिया। एकदम फास्ट ट्रैक वाली रोमांटिक लव स्टोरी चल रही है हमारी। आज मिले, कल कॉफी पी और परसों प्यार हो गया। मैं अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं होता, लेकिन इस लड़की के लिए काफी सीरियस हूँ। जब भी उसे देखता हूँ तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब वो स्माइल करती है तो डोपामिन, एंड जब वो मेरे पास आती है ना तो एड्रेनलिन बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, जब से उससे मिला हूँ दिल मेरा ना आईसीयू में है, और अब मैं उसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। बाकी के लिए मैं इस दुनिया में किसी से भी लड़ सकता हूँ, फिर चाहे वो लड़ाई उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही हो। Wow, such complex yet beautiful characters. एक पक्की दोस्ती, ढेर सारा प्यार और कुछ अनोखे एहसास। क्यों ना इन सब से थोड़ी और बातचीत हो जाए। So now I would like to call them back on screen together. Welcome, Zen, Reem and Akshay. How are you all feeling? Excited. We are equally excited for the show and we can't wait. पर उससे भी ज्यादा excited है हमारी मीडिया, और आपके लिए बहुत सारे questions हैं आज हमारे पास. So are you all ready to answer these questions? Yes, Yep. of course. Yes.
Bring it on. बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ज़ैन। पूछती है विजया फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया कि इश्क में मर जावा ये जो फ्रेंचाइज है पिछले 2 सीजन से सक्सेसफुली चलती आ रही है। Yeah. Now, do you see this as a challenge or as an advantage for the show? और इस बार की कहानी पिछले 2 सीजन की कहानी से कैसे डिफरेंट है? See, advantage तो है because it's this third season as they say, but I'm not taking as a third season. मैं एक इसको completely different look दे रहा हूँ because it's Fana इश्क में मर जावा and Fana with the new star cast. I think it's gonna bring in different kind of a charm to the show. So मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब शो हमारा बाहर निकल के आएगा and it's gonna just be super duper hit inshallah. So हाँ, थोड़ा बहुत जो हमारे पुराने फैंस हैं इश्क मर जावा के वो I'm sure कि वो भी हमें मिलेंगे, but as a whole I would want the entire India to watch it, not just India but the entire world to watch it because this is gonna be exciting, lovely and a super duper blockbuster. Inshallah, I hope that it reaches the heights that you mentioned and even more. हम सब यही होप करते हैं। Yes. तो चलिए, अगला सवाल है रीम आपके लिए। पूछती हैं शैलजा फ्रॉम जी न्यूज डिजिटल। वो पूछ रही है कि रियल लाइफ में क्या आपके साथ कभी ऑब्सेसिव लवर / फैन का एनकाउंटर हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है, आप स्माइल करिए तो आई थिंक देयर समथिंग देयर, बट ऐसा अगर हुआ है, वी वुड लव टू नो अबाउट एन इंसिडेंट। नो टच वुड, ऐसा मेरे साथ पहले हुआ नहीं है और मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा हो, because you know it's very difficult to have someone like this in your life and life बहुत claustrophobic हो जाती है. It's very weird that you know someone is keeping a watch on you 24/7. और अगर रियल लाइफ में भी ऐसा किसी के साथ होता है then you know I would just recommend them कि you politely just try to make that person understand or take some strict action against it because it can be harmful at the same time. हम realize नहीं करते that you know ऐसा obsessive इंसान can actually harm you in so many ways. Of course. Yeah. So true. I think कि ऐसा कभी किसी के साथ होना नहीं चाहिए and I'm so glad कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है. अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो please report it, okay? It's not safe. It's just not a happy place to be. So thank you so much, Reem. Let's move on to the next question, जो कि है अक्षित आपके लिए. श्वेता पूछती है फ्रॉम इंडिया टुडे कि आपका जो कैरेक्टर है इस सीजन में दैट इज आल्सो वेरी नाइव बॉय, बहुत सीधा साधा लड़का. सो पर्सनली इफ इट वाज अप टू यू, वुड यू वांट टू प्ले ज़ैन्स कैरेक्टर ग्रे शेड्स? ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आई वांट टू प्ले ज़ैन्स कैरेक्टर, बट या आई वुड लव टू प्ले सम ग्रे शेडेड कैरेक्टर. You know, I was talking to Zain like few days back कि how challenging it is to play such character. Until now, whichever characters I have played were very, you know, as you said, positive, down to earth and किसी के साथ बुरा ना करने वाला. But अगर वैसा कुछ करने का चांस मिलता है, maybe something like जैसा कि मैंने अभी तक, you know, एक्टर बनने से पहले भी I have, you know, expressions wise, looks wise, I used to watch myself in the mirror doing something like that. So I've already wanted to play something like Shah Rukh sir from Dawn, Khilji from Padmavat, or maybe few characters of the Vampire Diaries. So अगर ऐसा कुछ करने को मिल जाए, so I'll be more than happy. Oh, very true. जैसे कि शाहरुख खान आपने बोला तो even Dar was such a unique grey / good character. It was very confusing, but हम सबने ये किया है, शीशे के सामने खड़े होके हमने बड़े सारे characters play किए हैं. So we all love to do that. Thank you so much, Akshit. चलिए अगला सवाल है ज़ैन आपके लिए. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स, जो पूछती हैं कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं, यू आर प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर इन दिस सीजन, तो कितना मुश्किल था टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड डिड यू डू एनी रिसर्च रिहर्सल्स टू गेट इट राइट? रिसर्च मैं नहीं कहूँगा बिकॉज आई वाज एक्चुअली टोल्ड 1-2 सीरीज थी जो मुझे देखनी थी लाइक बेट्स मोटेल एंड स्टफ, जिसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं 1-2% एक टच होता है वो एक साइको किलर का. तो मैंने देखी टू अंडरस्टैंड द बेसिक नुआंसेस ऑफ इट. बट मेजरली यू नो इन टीवी व्हाट हैपेंस इज बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही क्विक होती हैं. हमारे पास एक टाइमलाइन होता है जिसमें हमें डिलीवरीज देनी पड़ती हैं, अनलाइक मूवीज जिसमें कि आपको 2-3 महीने मिलते हैं वर्कशॉप के लिए एंड देन 3rd-4th मंथ आप फ्लोर पे आते हैं, यू स्टार्ट शूटिंग.
हमारे पास we as actors are pretty talented. I must say that. All kudos to you. I've spoken to a lot of movie actors जो कहते हैं यार हम TV actually कभी कर ही नहीं पाएंगे because it's a very difficult medium to actually be on. क्योंकि हम लोग के पास एक ऑन एंड ऑफ का स्विच होता है कि भाई हम जैसे सेट पे मूव आते हैं और वो एक ऑन हो जाता है एंड देन जब सेट के बाहर होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव द कैरेक्टर एट द सेट एंड देन मूव ऑन. तो अगर मैं कैरेक्टर अपना कैरी करूंगा सेट के बाहर और मैं हूंगा तो people will start hating me, they won't sympathize with the character or me again, This one for sure because he's a very twisted character. Yeah, he's a very twisted character that ways. Okay, very well said कि जो TV actors होते हैं, it's a hard job and kudos to all of you and you're doing a fabulous job, all of you. Thank you. Next, the next question is for Reem. Reem आपसे पूछ रही है श्रुति from Tele Chakkar about how was your experience shooting in Jaipur? क्या free time में did you tour the city? Did you go shopping? Did you see sightseeing? Jaipur, actually yes, my mother is from Jaipur, so I've lived there for a few years. Okay. So नई थी जगह मेरे लिए. In fact, I love visiting Jaipur. And shooting experience was fun. It was super fun. जगह जहाँ पे हम शूट करे थे, that was beautiful. वहाँ के जो लोग थे, they were very cooperative and they were very nice to us. और शूट के बाद वो ठंड में बैठ के साथ में जो हम पार्क के बाद थोड़ी देर चिल करते थे, काफी मजा आता था. And the sunsets there were beautiful for some reason. Yeah, I know it's a pink city, तो काफी खूबसूरत थी वो जगह मेरे लिए. And yes, एक दिन मैं जयपुर में एक्स्ट्रा रुकी थी and I went to Ajmer because I just wanted to start my year with positivity and with some blessings. तो हाँ, वो एक बहुत अच्छी बात हो गई मेरी जयपुर जाने की, that I could go to Ajmer and yeah, that's all about it actually. अरे वाह, वैसे मैंने सुना है जयपुर में बहुत ज्यादा ठंड होती है. फॉर्चुनेटली विंटर्स में मैं कभी नहीं गई हूँ, बट आई रिमेम्बर यू सेइंग कि इमीडिएटली जैसे ही कट होता था आप फटाफट ग्रीन रूम में भागती थी कि कंबल के अंदर. That's true because इतनी ठंड होती थी and I was wearing like nice घाघरा चोली. ऐसा नहीं था कि I could wear sweaters and shoot. I was wearing nice अच्छे से एकदम घाघरा चोली, backless घाघरा चोली, मतलब और दिखना भी अच्छा था, बट अंदर ही अंदर इतनी ठंड लग रही थी, but that could not come on the face. तो बहुत मजा आता था. Like there are actually videos of me sitting and shivering to death. इतनी ठंड थी वहाँ पे. But yeah, it was an experience and हमारा काफी अच्छे से ख्याल रखा गया. So yeah, I had a good experience there. Great, lovely to hear that and we can't wait to watch all of that experience on the screen. Thank you. ठीक है, अगला सवाल है and this is the last question of this Q&A which is for Akshit. अक्षित आपको पूछ रही हैं सोनाली फ्रॉम TV9. शी सेज कि छोटे पर्दे पर ऑन्कोलॉजिस्ट का किरदार निभाना काफी चैलेंजिंग होता है. तो आपने क्या कोई रिसर्च की थी? डिड यू लर्न सम स्किल्स और हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, आई गेस प्रिपरेशन तो सेम तरीके से करनी पड़ती है. एंड आई हैड टू गूगल फ्यू थिंग्स अबाउट डॉक्टर्स एक्चुअली. देयर आर सो मेनी टर्म्स जो बहुत डिफिकल्ट होती है प्रोनाउंस करना. वो रीड करने में ही समझ नहीं आता, तो बोलना कैसे है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है. सो आई हैड टू लर्न फ्यू थिंग्स जो मुझे सीन्स करते टाइम भी कुछ वर्ड्स ने परेशान किया. सो आई लर्न सो मेनी टर्म्स जो मुझे बाद में प्रॉब्लम ना दे. अदर देन दैट, दीप्ति मैम टोल्ड मी टू वॉच दिस कोरियन सीरीज. आई हैड टू वॉच दैट कोरियन सीरीज जिसमें मुझे पता चलेगा कि एक डॉक्टर जिसकी बॉडी लैंग्वेज एंड रिफ्लेक्सेस, हाउ दे टॉक, थोड़ा सा एक जस्ट मिल जाएगा हाउ शी वाज लुकिंग फॉर दैट कैरेक्टर. तो मैंने वो कोरियन सीरीज देखी, कुछ एपिसोड्स देखे उससे, तो मुझे पता चला कि उनको थोड़ा सा कामनेस चाहिए मेरे कैरेक्टर में. एंड मेरा जनरली टेम्पो थोड़ा हाई है बोलने का, वो थोड़ा सा मैंने नीचे किया. सो दीज वर द फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैड टू वर्क ऑन. बट अदरवाइज हमारी स्टोरी दिल्ली की स्टोरी है, तो मुझे वो वाली प्रॉब्लम नहीं हुई कि एक्सेंट थोड़ा सा मैच करना है, वो नेचुरली आ रहा है. सो otherwise it was really fun doing preparing all those things. Fantastic. Everybody loves the Delhi story and we can't wait to watch this particular Delhi story. Thank you so much Zain, Akshit and Reem for being here. आपने इतनी खूबसूरती से ये सारे सवालों का जवाब दिए और हमारे मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने वाजिब सवाल पूछे. Thank you so much.
Thank you so much for having us. Thank you to each and every one of you for taking out your valuable time and being with us today. And do not forget to block your dates to watch this gripping tale of love. Fana, Ishq Mein Mar Jawa, only on Colors, premiering on 31st January 2022, Monday to Friday at 10:30 p.m. Now, I may please call the entire cast on screen for a photo op. Thank you once again, everybody. Take care, all of you. याद रखिएगा, कोविड अब तक गया नहीं है, तो प्लीज सारे प्रिकॉशंस लीजिए और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा. So stay masked up, sanitize yourself, and maintain social distancing. This is me, Pavleen Gujral, signing off. Ciao.